क्या آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھنا شروع کر رہے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں یا شاید آپ کے شہر یا کسی محلے میں ایک معصوم بچہ یا ایک بے بس عورت کسی درندے کے چنگل میں تڑپ رہی ہوگی۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نعمان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو پر۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں۔ یہ سیلف اویئرنیس اور انفارمیشنل ویڈیو ہے۔ تو چلیں پھر ہم روز اخبار کھولتے ہیں، سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، ایک نیا نام سامنے آتا ہے، کبھی زینب، کبھی موٹروے ثانیہ، کبھی نور مقدم، تو کبھی کوئی معصوم بچہ جس کا نام بھی شرم و خوف کے مارے دبا دیا جاتا ہے۔ کل رات میری آنکھوں کے سامنے سے ایک ننھی سی پری کی پوسٹ گزری جو صرف 18 ماہ کی تھی، معصوم آئزل۔ اللہ اکبر! میری روح کانپ گئی۔ کیسے لوگ ہیں یار، اتنی سی معصوم جان کے ساتھ اتنی درندگی، انسان سوچ کے بھی لرز جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک کمنٹ پڑھا جس میں لکھا تھا کہ آئزل کی ماں کہتی ہیں اسے میرے سامنے لاؤ، میرے پاس بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بچی نے مجھے کتنی دفعہ پکارا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ الفاظ پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بس یہی سوچتا رہ گیا کہ وہ 18 ماہ کی ننھی سی جان جب خوف میں مبتلا ہوئی ہوگی تو اس کی معصوم آنکھیں اپنی ماں کو ڈھونڈتی ہوں گی۔ یہ عمر تو کھلونوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے، ماں کی گود میں مسکرانے کی ہوتی ہے۔ آئزل شاید واپس نہیں آئے گی، مگر اس کے لیے انصاف کی آواز کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ ہم 2 دن افسوس کرتے ہیں، کمنٹس میں انصاف کرو لکھتے ہیں اور پھر اگلے دن حادثے تک سو جاتے ہیں۔ لیکن کب تک؟ آج کی ویڈیو تفریح یا سنسنی خیز یا کلک بیٹ نہیں ہے۔ آج میں وہ سچائیاں، حقیقی واقعات اور اعداد و شمار رکھنے جا رہا ہوں جن سے ہمیں نظریں چرانی نہیں ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو اس درندگی سے کیسے بچانا ہے، کیونکہ یہ آگ آہستہ آہستہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عالمی اور قومی اعداد و شمار کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو غلط فہمی دور کر لیں کہ یہ مسئلہ صرف ایک ملک کا ہے، یہ انسانیت کی سطح پر ایک عالمی وبا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں ہر 3 میں سے 1 عورت جنسی یا جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہر 68 سیکنڈ میں ایک شخص جنسی تشدد کا نشانہ بنتا ہے۔ وہاں پر ہر 6 میں سے 1 خاتون کا شکار ہوتی ہے۔ یورپ میں بھی یہ شرح حیران کن تک زیادہ ہے، لیکن وہاں قوانین اور رپورٹنگ کا معیار بہت اچھا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں، تو یہاں شرم و بدنامی کے ڈر سے 80% سے زیادہ کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور جو سامنے آتے ہیں وہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یعنی ایک سمندر سے پانی کا گلاس۔ ساحل NGO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر روز اوسطاً 12 سے زائد بچے جنسی تشدد اور اغوا یا زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے 45 سے 50% تک چھوٹے لڑکے شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حقیقی واقعات کی مثالیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان واقعات کو دیکھیں جنہوں نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ قصور اور ننھی زینب کیس، سال 2018۔ 7 سالہ زینب ٹیوشن جاتے ہوئے اغوا ہوئی۔ مجرم عمران محلے کا ہی ایک ایسا شخص تھا جس پر کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس زینب الرٹ ایکٹ بنا دیا گیا، مگر اس واقعے نے سکھایا کہ مجرم اکثر آپ کا شناسا ہوتا ہے، آپ کو جاننے والا ہوتا ہے، آپ کے قریب ہوتا ہے۔
दूसरा वाकया लाहौर सियालकोट मोटरवे, साल 2020। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने पर बच्चों के सामने खातून जो उनकी मां है उनके साथ ज्यादती की गई। इससे जाहिर हुआ कि अवामी शाहराएं और पब्लिक मकामात भी महफूज नहीं हैं। तीसरा वाकया कसूर चाइल्ड एब्यूज स्कैंडल, साल 2015। सैकड़ों छोटे लड़कों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। यह साबित करता है कि बेटे भी गैर महफूज हैं। चौथा हिस्सा हमारा आता है पाकिस्तानी आइन और कवानीन हो सख्त सजाएं। अब हम बात करते हैं नाजरीन इस पहलू पर जिसका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जिनसी हरासानी, ज़ना बिल जबर यानी रेप और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के मुजरिमों के खिलाफ आइन और कवानीन के तहत इंतहाई सख्त सजाएं हैं, जबकि अदालती कार्रवाई और पुलिस के निज़ाम के तहत भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। कानूनी, अदालती और इंतज़ामी तरीक़ाकार के तहत मुजरिमों के साथ दर्ज झेल सलूक किए जाते हैं, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कानूनी सज़ाओं की। पाकिस्तान में बालिग ख़वातीन, मर्दों या बच्चों के साथ ज़्यादती के मुजरिमों की ताज़ीरात पाकिस्तान और खसूसी कवानीन के तहत कड़ी सज़ाएँ मौजूद हैं, जिसमें बात करते हैं मौत या उम्र कैद। एंटी रेप एक्ट यानी सीक्वल ऑफिसेस एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बालिग ख़वातीन या मर्द के साथ रेप या ज़्यादती के साबित होने पर मुजरिम को उम्र कैद या सज़ाए मौत दी जा सकती है। ज़ैनब अलर्ट एक्ट 18 साल से कम उम्र बच्चों के अगवा या ज़्यादती या कत्ल की सूरत में सज़ाए मौत, उम्र कैद या कम अज़ कम 10 से 14 साल तक सख्त कैद की सज़ा और भारी जुर्माने का हुक्म है। उसके बाद बात करते हैं गिरोही ज़्यादती के बारे में। अगर ज़्यादती में एक से ज़ायद अफराद शामिल हों तो कानून के तहत तमाम मुलज़िमान को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ाएँ दी जाती हैं। केमिकल कॉन्स्ट्रिक्शन एंटी रेप ट्रायल एंड प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत बार बार जुर्म दोहराने वाले या संगीन दरिंदों के लिए अद्वियात के ज़रिए जिनसी सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म करने की शिक भी शामिल की गई है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि केस के दौरान और हिरासत में सलूक हमारे पास जो आता है उसमें यह है कि खसूसी अदालतें रेप, ज़्यादती और चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को तेज़ी से निपटाने के लिए खसूसी एंटी ज़्यादती अदालतें कायम की गई हैं, ताकि 3 से 4 माह के अंदर अंदर फैसला सुनाया जा सके। गैर ज़मानती जुर्म ये तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत होते हैं। मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके या तो जेल या पुलिस के रिमांड पर भेज दिया जाता है। शनाख्त और नादरा रिकॉर्ड एंटी रेप एक्ट के तहत सज़ा याफ्ता मुजरिमों का तमाम डाटा, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए नादरा के नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स में दर्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग आइंदा सरकारी मुलाजमतों, पासपोर्ट या हसास जगहों पर काम करने के लिए बिल्कुल अहल नहीं होते। पांचवा हिस्सा इसमें आता है कि जेल का माहौल और माशरती बॉयकॉट। कानून तो अपनी जगह काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेल और कैद के दौरान इन मुजरिमों के साथ क्या सलूक किया जाता है? तो चलिए हम इस पे भी नज़र डालते हैं। जेल का माहौल जेल के अंदर भी जिनसी जराइम और बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले कैदियों को दूसरे कैदियों और माशरती नज़रों से शदीद नफ़रत, हक़ारत का सामना करना पड़ता है। अक्सर औक़ात जेल इंतज़ामिया को ऐसे कैदियों को दीगर कैदियों से अलग थलग तन्हाई वाले सेल्स में रखना पड़ता है, ताकि दूसरे कैदी इन्हें मार ना दें। मेहनत मुशक्क़त वाली कैद सज़ाए मौत या उम्र कैद के साथ इन मुजरिमों को कैद बामुशक्क़त यानी सख्त मेहनत मुशक्क़त काटनी पड़ती है। इसके बाद बारी आती है माशरती बायकॉट के बारे में। कानून और अदालती सज़ाएं से हटकर पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसे शख्स को मुकम्मल बायकॉट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मुजरिम हो इसके सहूलतकारों को शदीद माशरती नफ़रत, तहकीर और रुसवाई का सामना करना पड़ता है।
इनका नाम अवामी सतह पर सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आने पर इनके माशरे में रहना, काम करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। इनकी नस्लें इस बदनामी का बोझ उठाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा छठा हिस्सा, दरिंदों की पहचान हो गलतफहमियाँ। अब हमारे पास जो आता है कि हमने औरतों और बेटियों की तरबियत पर तो इतनी तवज्जो दी है कि दूसरी तरफ कुछ मर्द जानवर बन गए हैं। जी हाँ, शहरी माहौल और ज़ाहरी शराफत के पीछे छुपे दरिंदों का मुकाबला करने के लिए पहले अपने घरों का दफा मजबूत करना पड़ेगा। मुआशरे में समझा जाता है कि ज्यादती करने वाला कोई या तो पागल होगा, ड्रोनी शक्ल का अजनबी होगा या अंधेरी गली में छुपा होगा। हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। 85 से 90% केसेस में मुजरिम अजनबी नहीं होता, वो आपका जानने वाला होता है। अब हम बात करते हैं उस हकीकत के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। वो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है, जैसे आपका चचा, आपका ताया, आपका मामू, आपका कज़न, आपके घर का मुलाजिम, आपका ड्राइवर या आपका वो माली भी हो सकता है। और इसके अलावा स्कूल, मदरसे या एकेडमी का उस्ताद हो सकता है। उसके अलावा पड़ोस का कोई बज़ाहिर बुजुर्ग या शरीफ इंसान हो सकता है। और इसके अलावा बहुत से लोग, ये लोग पहले सबका एतमाद जीतते हैं, फिर बच्चों को धमकाते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे खौफ के मारे खामोश रहते हैं। अब हमारे पास बात आती है बच्चों के बारे में। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि सातवां हिस्सा बच्चों की हिफाजत और इनकी दीनी हदायत जो ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को महफूज कैसे रखें? वालिदैन के लिए दर्ज झैल असूलों पर अमल करना ज़रूरी है, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपने दीन इस्लाम की इन सुनहरी हदायत पर अमल करना होगा जो मासूमियत और पर्दे की हिफाजत के लिए बताई गई हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कि आप दीनी और इखलाकी असूल जो हम सब पर और आपकी बच्चियों, आपके बच्चों पर ज़रूरी है, वो ये है कि जब बच्ची 6 साल की हो जाए, इसे नामहरमों के सामने मुकम्मल संभालें और गैर मर्दों की गोद में ना बिठाएं। ये उम्र मासूमियत और हिफाजत की बुनियाद है। महरम रिश्तों और घर में एहतियात। 6 साल की उम्र के बाद बच्ची को बगैर मुनासिब कपड़ों के अपने पास सुलाने से भी एहतियात बरतें, क्योंकि ये सीने शाऊर का आगाज़ होता है, जवानी का आगाज़ होता है। अब हमारे पास बात आती है कि अमली कवायद, हमको क्या कवायद व ज़वाबित करने पड़ेंगे। वो हमारे ऊपर ये है कि बच्चों के अंडर गारमेंट्स रूल। 3 साल की उम्र से बच्चों को सिखाएं कि कपड़ों से ढके ही से प्राइवेट हैं, जिन्हें कोई नहीं छू सकता। जिन पे आपने कपड़े पहने हैं इनको कोई नहीं छू सकता। जैसे हम गुड टच और बैड टच कहते हैं। बच्चों को वाज़िया फ़र्क बताएं कि गैर आरामदा छूने पर फ़ौरन नो ना कहना, और वालिदैन को बताएं जिस्म के वो हिस्से जहां आम तौर पर छूना गुड टच शुमार होता है, वो कुछ दर्जेल ये हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सर और बाल पर प्यार से हाथ रखना या बाल सहलाना, ये गुड टच है। शाबाश देने के लिए आपका पीठ थपथपाना या कंधे पर हाथ रखना, ये भी हमारे पास गुड टच है। उसके बाद हम बात करते हैं हाथ मिलाना या प्यार से पकड़ना, ये भी एक गुड टच है। उसके बाद हम बात करते हैं मदद करने पर प्यार जाहिर करने के लिए बाजू पर हाथ रखना, ये इस तरह गुड टच। उसके बाद आते हैं वालिदैन या करीबी घर वालों का गाल पर प्यार करना, इधर गाल पर प्यार, किसकी बात नहीं कर रहा, प्यार ऐसे। और जिस्म के वो हिस्से जो बैड टच में आते हैं, बच्चों को सिखाएं कि इनके जिस्म के वो तमाम हिस्से जो जिस्म से कपड़ों से ढके होते हैं वो इनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास चेस्ट, सीना, उसके अलावा बैड टच में शुमार होता है। सीना, बैड टच, आपके पीछे का हिस्सा, ये भी आपका बैड टच। उसके अलावा आपके होंठ, ये भी बैड टच के अंदर शुमार होते हैं। उसके अलावा इन हिस्सों को वालिदैन या डॉक्टर की मौजूदगी के बगैर
किसी को भी देखने या छूने की इजाज़त नहीं, डॉक्टर्स को भी अगर वालिदैन मौजूद हैं। बेटों पर भी नज़र रखें, मासूम लड़के भी आसान टारगेट बनते हैं, इन्हें कभी अकेला ना भेजें। उसके अलावा हम बात करते हैं कि बच्चों के रवैयों की तब्दीली। बच्चे खामोश हो जाएंगे या तो डरेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे या प्यार से आप इनसे वजह पूछें। और उसके अलावा डिजिटल सेफ्टी, बंद कमरे में अकेले मोबाइल के इस्तेमाल पर नज़र रखें और इंटरनेट फ़िल्टर्स लगाएं ताकि आपको मालूम हो कि स्पेसिफिक टाइम में आपके बच्चे ने क्या क्या सीन किया है। आगे आता है 8वां हिस्सा, सेल्फ डिफेंस और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़। सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग ख़त्म करें, या तो जिस तरह आप ज़्यादती के वाक़यात में असल वजह दरिंदे की बीमार सोच है, जिस तरह आप कहते हैं कि नो, अगर आपने इसके बारे में किसी को नहीं बताना तो ये आपकी सोच है। आज का दौर वो दरिंदों का माहौल ये तकाजा करता है कि बेटियों का सिर्फ खाना बनाना नहीं बल्कि अपने दफा और हथियार संभालना यानी बंदूक चलाना और सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाए। हत्ता कि अगर किसी को बंदूक के लाइसेंस की दरख्वास्त में वजह लिखनी पड़े तो लिख दें कि घर में बेटियां हैं, तो ये कोई अजीब बात नहीं है। शहरी ज़िंदगी और तालीम से पहले अपने अपने घर का दफा मजबूत करें, वो वक्त की ज़रूरत बन चुका है। अब हम बात करते हैं ख़वातीन की ज़रूरी इक़दामात के बारे में। सबसे पहले मेरी ख़वातीन से अपने पास पेपर स्प्रे या सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखें। हरासानी या आपको कोई पीछा कर रहा है तो उस पर खामोश ना रहें, शोर मचाएं। हेल्पलाइन जैसे 15, 103, 130 और 11-1121 हमेशा स्पीड डायल पर रखें। 9वां हिस्सा, इख्तिताम। अब हम बात करते हैं नाजरीन, कब तक हम सिर्फ मोमबत्ती जलाते रहेंगे? कब तक हम खुद बेदार नहीं होंगे और बच्चों को दोस्त नहीं बनाएंगे? ये दरिंदे शिकार करते रहेंगे। आज ही हम अपने बच्चों के पास बैठें, इनसे बात करें और इन्हें सेल्फ डिफेंस और बॉडी सेफ्टी सिखाएं। शर्मिंदगी से बेहतर है बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप्स में शेयर करें। खामोशी तोड़ दें, क्योंकि आपकी आज की खामोशी कल को आपके बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकता है, ज़ाया कर सकता है। और चेक कर लें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम लिखें, और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।